عبداللہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزر رہی تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سینے کی ایک گولی، شیشے کی ایک گولی اور چھٹی، کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلہے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہا پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریبی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑیاں عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلہے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر اگی ہوئی ہیں۔ چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چپ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، دلہے نے سرگوشی میں کہا، اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لاہے عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلہے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں چوپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ بعد دلہا آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا کر رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے، وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے ایک دوری کے ساتھ اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں صرف انڈر ویئر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پل صراط عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے، اور دوسرے ہی لمحے شیشے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی، یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا یا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا، وہاں سیاہ جال لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دیے۔
मुझ से पहले दूल्हे ने उन्हें पकड़कर जिस्म को जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थीं, एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने अपना थैला खोला और अपनी पगड़ी को नीचे लटकाया, जिसकी मदद से मैं भी बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे इल्म हुआ कि उसने क्यों पहल की थी। तेज और नुकीली घास ने उसके हाथ लहूलुहान कर दिए थे। उसे इल्म था कि मैंने अभी मुल्क के लिए बहुत से काम करना है। शायद उसीलिए उसने मुझे तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे पहली मर्तबा उसकी अजमत का एहसास हुआ। पगड़ी का पल्लू पानी में पगोकर मैंने उसके हाथ अच्छी तरह साफ किए और एक हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी, जिसने खून का बहाव खत्म कर दिया। वो पट्टी दूल्हे ने थोड़ी देर के बाद ही उतार दी। खामखा किसी का मेरी तरफ मुतवज्जे होना ठीक नहीं, उसने मेरी बात का मुख्तसर से जवाब दिया। हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। फसलें अपने जोबन पर थीं, कहीं कहीं से सब्जा रौंदा हुआ दिखाई देता था। ये वो जगहें थीं जहां से इंडियन कानवाए गुजरते थे और अपनी लाई हुई तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ जाते थे। खेतों के बीचों बीच चलते चलते बिल आखिर हम उस सड़क के आखिरी कोने तक जा पहुंचे जहां से हमें गंगानगर शहर में दाखिल होना था। शहर में दाखिले के लिए भी एक बड़ी नहर बनी हुई है और दाखिले के लिए जहां भी नहर पर पुल बना हुआ था, वहां पर एक मिलिट्री पोस्ट भी मौजूद थी। यह सर्द जंग का दौर था। मशरकी पाकिस्तान में भारतीय मदाखलतकारों की सरगर्मियां अपने अरूज पर थीं। आए रोज कोई न कोई खबर सुनने को मिल जाती थी और अब भारतीय जंगी जनून मगरबी सरहदों का रुख कर रहा था। रास्ते में जहां जहां से हम गुजरे, हर तरफ आर्मी कन्वाय आते जाते दिखाई पड़े। ये अलग बात है कि हम उनसे दामन बचाकर अपना सफर करते रहे, लेकिन अपने काम की कोई बात मैंने नजरअंदाज नहीं की थी। मेरी बेचैन नजरों से कुछ न बच सका था। उस जगह का नाम तीन पुली था जहां से हम शहर में दाखिल हो रहे थे। यहाँ से तीन रास्ते उस मकाम पर आकर मिलते हैं जो मुख्तलिफ देहातों से उस तरफ आते हैं। तीन पुली से थोड़ा पीछे ही हमें एक साइकिल रक्षा नजर आ गया। वो शख्स किसी का दूध लेकर शहर की तरफ जा रहा था। दूल्हे ने मौके गनीमत जाना और उसे ठहरने का इशारा किया। हमारा हुलिया चूंकि बिल्कुल देहातियों जैसा था, इसलिए हमारी हालत पर कोई शक न कर सकता। लेकिन अब एक और मुश्किल आड़े आ रही थी। यहाँ की मखसूस जबान पर मुझे अबूर हासिल नहीं था। दूल्हे की अलबत्ता और बात थी, तुम फिलहाल अपने आप को गूंगा ही समझो। उसने रक्षा साइकिल की तरफ बढ़ते हुए सरगोशी की। मैंने जवाब में गर्दन हिला दी। अब हम दोनों रक्षा साइकिल में बैठ चुके थे। भारतीय देहातियों में बहुत से दीगर गैर कानूनी और गैर इखलाकी कामों के अलावा एक काम कुछ ज्यादा ही होता है, और वो है शराब बनाना। हर देहात में गैर कानूनी तौर पर शराब निकाली जाती है, जो शहरों में सस्ते दामों फरोख्त होती है। क्योंकि हुकूमत के मंजूर शुदा ठेकों से उनके रेट खासे कम होते हैं, इसलिए छोटा तबका अमूमन इस कार खैर को तरजीह देता है। भारत का हर दूसरा शहरी शराब का रसिया है। नशाबाजी का रुझान इतना आम है कि सड़क के किनारे जैसे हमारे यहाँ चाय के स्टॉल बने होते हैं, इस तरह वहाँ शराब के ठेके बने होते हैं। यहाँ सरकारी तौर पर जारी शुदा शराब फरोख्त होती है और एक मखसूस इहाते के अंदर बैठकर शराब नोशी करने की कोई ममानियत नहीं है। पंजाबी देहाती मुआशरे में ऐसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की मदद करना बाइसे फख्र समझा जाता है। दूल्हे ने शायद उसी पसे मंजर में प्लान बनाया था। 2-3 मिनट तक गुफ्तगू करने के बाद ही वो रक्षा वाले को अपने डब पर ले आया था। एक करीबी गांव से उसने अपना रिश्ता जोड़ते हुए वहां के 5-6 मोतबर किस्म के बदमाशों का हवाला देकर उस पर अच्छा खासा रोप डाल दिया था। महाराज जी, हम तो दास हैं, आपके जितना माल भी हो शहर पहुंच जाएगा। अमूमन साइकिल रक्षा को ही इस गैर कानूनी शराब की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जाता और ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते।
दूल्हे ने उसे यही लालच दिया था कि वो उसके जरिए काम करवाएगा। 3 पुली पर हम भी पहले से लगी कतार में खड़े हो गए। साइकिल रिक्शा वाले ने हमें दूध का मालिक बताया था और वहां मौजूद गोरखा फौजियों ने सिवाय दूल्हे के नाम और गांव के नाम के और कुछ नहीं पूछा था। ये मरला भी बखैर खूबी तय होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब हम लोग गंगा नगर शहर में दाखिल हो रहे थे। भारतीय शहरी जिंदगी का पहला नमूना ही इतना कराहत अंगेज था कि मैंने पाकिस्तान बनने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। भारतीय मखलूत मुआशरा बड़ी तेजी के साथ पस्ती की मंजिलें तय कर रहा था। आम देहात जो कभी इज्जत और गैरत का संबल होते थे, वहां बेहयाई पूरी तरह रवाज पा चुकी थी। औरत और मर्द के गैर इखलाकी तल्लुकात और उसके बदतरीन नताइज अपने अरूज पर हैं। शहरों में भी जगह जगह ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते थे। यूं लगता था जैसे मुसलमानों के जाते ही हिंदू सिख मुआशरा अपनी असलियत पर आ गया है। जब एक सरहदी और मामूली शहर का ये हाल है तो आगे बड़े शहरों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा मुझे बखूबी हो गया था। रिक्शा वाले ने हमें शहर के ऐन दरमियान लारी अड्डे के नजदीक उतारा था। हमारे लाख जिद करने के बावजूद उसने हमसे किराया नहीं लिया था। वो तो हमें चाय पिलाने पर भी तुला हुआ था, लेकिन ये ज्यादती थी। मैंने और दूल्हे ने उसे जबरदस्ती अपने साथ नाश्ता करवाया और अगली सुबह मुलाकात का वादा करके उससे अलग हो गए। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों ने गंगा नगर के लारी अड्डे का रुख किया। इस असना में मैंने गूंगा बने रहने में ही खैरियत जानी थी। इन लोगों के गुफ्तगू करने का मखसूस लहजा ज़हन नशीन कर रहा था। जब तक मुझे इस बात का यकीन न हो गया कि मैं यहाँ अजनबी और अलग अलग नजर नहीं आऊंगा, मैंने जबान बंद रखी। मुझे लुधियाने जाना था। किस्तों में सफर करना ही महफूज तरीन था। हम एक बस में बैठे और अबूहर की तरफ चल दिए। गंगानगर से लुधियाना तक का सफर ऐसे ही था जैसे किसी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना हो तो मुल्तान जाए और वहां से फैसलाबाद पहुंचे। अबूहर के बसों के अड्डे पर जैसे ही बस रुकी, मैंने दरवाजे पर नजरें दौड़ाई। वहां 2 सफेद कपड़ों में मलबूस इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी हर उतरने वाले को इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन हो कि यही पाकिस्तान का जासूस है। हम अलग अलग उतरेंगे, मैंने दूल्हे के कान में सरगोशी की। वो मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बस में खासा रश था जिसकी वजह से हर किसी को उतरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने दूल्हे के उतरने का इंतजार किया। जब वो उतर गया तो मैं भी तकम्पेल करता पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। नीचे उतरते वक्त मैंने जानबूझकर एक उधेड़ उम्र के सिख को कोनी मारी थी। अंधा है क्या, उसने मेरे पीछे उतरते ही मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा। क्षमा करना महाराज जी, मैंने भारतीय रस्मों रवाज के मुताबिक बड़ी आजिजी से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे इस अमल से कम अज कम मैं इन दोनों शिकारी कुत्तों की नजरों का सामना करने से महफूज हो गया, जो चारों तरफ जाल फैलाए शायद मेरे ही मुंतजिर थे। दूल्हे के लिए ये मामूल की बात थी। वो हालात से लापरवाह लारी से कुछ फासले पर बने एक खोखे से बेड़ियां खरीद रहा था। मैं भी उसके नजदीक पहुंचा। उसने मुझसे बात करना तो एक तरफ, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और अपने आप में मगन रहा। मैं भी उसके रवैये का मतलब बखूबी जान चुका था, इसलिए मैंने भी उससे पहले ही सिगरेट की एक डबिया खरीद कर वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी कुछ फासले पर उसके ताक़ुब में रवाना हो गया। इस अमर पर हम दोनों ही नजर रखे हुए थे कि कोई हम दोनों में से किसी का ताक़ुब तो नहीं कर रहा। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद जब दूल्हे को इस बात का यकीन हो गया कि हम महफूज हैं तो वो एक जगह खड़ा हो गया। उस तरफ लोगों की आमदोरफ्त कम ही थी, फिर भी मैंने खतरा मोल लेना मुनासिब न समझा। सत श्री अकाल जी, मैंने उसके करीब पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने भी जवाब में उसी खूबी से वही अमल दोहराया कि मैं उसकी शानदार एक्टिंग पर हैरान रह गया। और लोगों की बात तो छोड़ दीजिए,
और लोगों की बात तो छोड़िए, खुद मुझे भी उसका यकीन होने लगा कि हम काफी अरसा बाद पहली मर्तबा मिले हैं। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हुए हम बिल आखिर एक होटल के करीब पहुंच गए। भारत में अमूमन दो किस्म के होटल पाए जाते हैं, एक तो इन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन यानी सब्जियां खाने वाले हैं, और दूसरे उनके जो मीट खाने वाले हैं। मुसलमानों की गोश्तखोरी चूंकि मशहूर है, इसलिए हम लोग ऐसे होटलों में जाने का रिस्क कम ही लिया करते हैं, खाह वो हलाल गोश्त ही क्यों न फरोख्त हो रहा हो। मैंने सरसरी नजरों से जायजा लिया। होटल के बाहर लिखा था प्रेम विष्णु ढाबा। विष्णु वो लोग होते हैं जो अंडा गोश्त वगैरह नहीं खाते, और ऐसे मामूली दर्जे के होटल अमूमन ढाबा कहलाते हैं। दूल्हे ने जानबूझकर उस जगह का इंतखाब किया था क्योंकि यहाँ अमूमन गरीब लोग ही खाना खाते हैं और ऐसे ढाबे ज्यादा मुश्तबा भी नहीं होते। प्रेम विष्णु ढाबे के एक कोने में रखी मेज पर बैठकर हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया, और जैसे ही एक मैले कुचैले कपड़ों वाला होटल का मुलाजिम जंग आलू ताम चीनी की प्लेटों में खाना वहां रख कर गया, हम दोनों ही खाने पर टूट पड़े। रात भर के पैदल सफर और थकावट ने बुरा हाल कर दिया था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कदम कदम पर गिरफ्तारी और मौत का खतरा। मैं अपनी हद तक तो यही कहूंगा, मैं अपने जहन और जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को बुरोकार ला रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही हमें जरा महफूज होने का एहसास हुआ, शदीद थकावट महसूस होने लगी। मैं आपसे अलग हो रहा हूं, अल्लाह ताला आपका मिशन कामयाब करे। दूल्हे ने गुफ्तगू का आगाज किया। आमीन, हम दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकला। उसने एक मर्तबा फिर मुझे रास्तों की ऊंच नीच से आगाह किया, लारियों और ट्रेनों वगैरह में सफर के आदाब के मुतालिक आगाही दी, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके के लोगों की आदत से आगाह किया कि उन बातों का मुझे पहले से इल्म था, फिर भी मैं बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातें ज़हन नशीन कर रहा था। अच्छा दोस्त, फी अमान अल्लाह, उसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।